Preposition is going to be our next topic to discuss. How preposition is important to make sentences as well as how it is going to be helpful to extend the sentence limits and sentence length. Preposition is one of the parts of speech out of eight which will you see use so much or so often in your sentence construction. So let's learn today how do we use preposition practically, as I have mentioned it to my thumbnail as well, that I'm going to teach you preposition for your practical purposes as well as how comfortably easily we can learn them. Then I mean to say this tricky topic. Okay, so prepositions exactly होते क्या हैं, किस तरीके से हमें काम आने वाले हैं in our construction of the sentences, and which this we are going to use obviously to enhance our speech quality as well as writing quality. किस तरीके से राइटिंग में स्पीच क्वालिटी और बेटर बनाई जा सकती है यूजिंग दिस प्रेपोजिशन, आप इस चीज को सीखोगे, समझोगे. हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले आई request you to subscribe to my channel and share it to as many people as possible so that you can get the so that I can get encouragement and motivation to make such informative and educational videos for you. And please turn on your notification icon bell as well so that you can get the notification of my such interesting and important videos, educational videos. Thank you very much. Start करते हैं. What is exactly preposition? So when you read this word preposition, when we break it into two, it can be broken in pre plus position. Now what is the meaning of position? Place. A pre means prior or before. Okay, before, place. Now what is this? What does this place refer to? हम जब प्लेस की बात करते हैं तो व्हाट डज दिस प्लेस रेफर टू? सो बेसिकली as far as place is concerned, this is the place before a noun. Okay, so basically the word which is placed before a noun is said to be preposition. So basically what is the use, what is the function of the preposition? So let's start. So when we make a sentence, as I told you in my earlier videos too, that when we make a sentence in English language, we need to answer only three questions: who, what, and whom. I give a lot of stress on that, which is obviously so much significant, so much unavoidable, because you cannot make a simple sentence using or asking these three questions. It's very important to learn first to write a sentence containing three important words: who, what, and whom. So what does who refer to? The subject. And what is the object, action, and whom is the object. So when we make a sentence, whatever language you speak, whatever language you use to write anything or convey your message, it's not possible to have these words actually and their uses. मतलब इनके बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है किसी भी लैंग्वेज में. आप जब भी कभी कुछ भी बोलना है, लिखना है, दे आर गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. ओके, सो आप जब इनको यूज करोगे तब जाके आपका फर्स्ट सेंटेंस और बेसिक सेंटेंस बनेगा. जैसे आपने लिखा, you take anyone as a subject, like Sumit. You have taken someone or some Sumit as your subject. Now Sumit actually is someone who does some action. मान के चलो वो एक्शन कर रहा, कौन सा एक्शन कर रहा है? प्लेज. क्या एक्शन कर रहा है? प्लेज. तो सुमित प्लेज. अब वो क्या प्ले कर रहा है? सो आइदर ही विल बी प्लेइंग. क्या कर रहा होगा? प्ले करते हुए. हमारे दिमाग में प्ले का नाम लेते हुए हमारे दिमाग में दो ही चीजें आएंगी, या तो कोई गेम आएगा या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा. तो अगर मैं गेम की बात करें तो भैया चेस आ गया. चलिए, so this is how you constructed one sentence. Okay, Sumit plays chess. Now when you see this word, this particular sentence, this formation, you did not feel the use of preposition. Obviously yeah, we do not require a preposition, and because there is no requirement, that's why there is no preposition.
So it's not compulsory to use preposition in each and every sentences, because preposition is felt, and or its a necessity, its requirement is felt when your verb is not able to make connection with your object, okay, or your action is failing to make connection to your object. तो जब आपका एक्शन, आपका वर्ब आपके ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं बना पा रहा, देन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, तब हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही बोलते हैं हमारे दिमाग में या तो नेम ऑफ गेम आ जाएगा या इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। जैसे ईट बोलते हुए कुछ फूड आ जाएगा और सम नेम्स ऑफ एडिबल आ जाएगा। और देयर आर सो मेनी एक्शन जिनका अपना ऑब्जेक्ट है। ड्रिंक बोलते ही आपके दिमाग में वाटर और सम काइंड ऑफ लिक्विड आ जाएगा, और कैरी करते हुए भी हमारे दिमाग में कोई ना कोई मटेरियल आ जाएगा। सो मोस्ट ऑफ दी, या अपन कहें तो देयर आर सो मेनी वर्ब्स व्हिच हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट। Okay, so when we use or speak those actions or talk about those actions, the objects will come automatically to our mind, or objects will definitely be following those actions. लेकिन it is not compulsory with all the actions, even the same actions with different objects. Okay, जैसे इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे सुमित प्लेज चेस, तो चेस और प्ले में आपस में क्या है, एक रिलेशन है, एक बाउंड है, एक बॉन्डिंग है जो हमें नजर आती है। बट सेम वी कैन नॉट फील व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ प्ले, प्लेस ऑफ प्ले, और रीजन ऑफ प्ले, और मैनर ऑफ प्ले, और मीडियम ऑफ प्ले, मीन्स ऑफ प्ले। तो जब हम प्ले के और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं और कोई ऑब्जेक्ट हम प्ले के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वो कनेक्शन हम यहाँ पे प्ले के साथ फील नहीं होता। वी डू नॉट फील लाइक, मैं अगर ये बोलूं सुमित प्लेज चेस 9 AM, क्या कोई कनेक्शन फील हो रहा है? सुमित प्लेज चेस, सपोज मैंने लिखा यार्ड, कोई कनेक्शन फील हो रहा है? सुमित प्लेज चेस फ्रेंड, कोई कनेक्शन फील हो रहा है? सुमित प्लेज चेस ट्रिक्स, कोई कनेक्शन फील हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी प्ले के साथ चेस तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट है। Chess is actually making its relation or co-location with play, but क्या बाकी के ऑब्जेक्ट जो मैंने बोला, मैंने लिखा 9 AM, मैंने लिखा यार्ड, मैंने लिखा फ्रेंड, और भी जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यूज करे, फ्रेंड है ना, ट्रिक्स, और मैंने लिखा इवनिंग, है ना, या हाँ इवनिंग लिखा, तो क्या अब मैं क्या ये सेंटेंस डायरेक्ट लिख सकता हूं? क्या इन सेंटेंस को ऐसे बता सकता हूं? कैन वी यूज प्ले विद दीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स विदाउट हैविंग एनी कनेक्शन, लाइक सुमित प्लेज चेस 9 AM, और सुमित प्लेज चेस यार्ड, सुमित प्लेज चेस फ्रेंड, सुमित प्लेज चेस ट्रिक्स, सुमित प्लेज चेस इवनिंग। तो आपको लगेगा बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, कुछ मिसिंग सा लगता है ना। मतलब प्ले, इनके साथ कोई अपना कनेक्शन, इट इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप और एनी कनेक्शन विद दीज ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, इस तरह के रिलेशनशिप को कुछ मीनिंगफुल क्राइटेरिया देने के लिए हमको जिन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, वी कॉल दोज वर्ड्स प्रेपोजिशन बेसिकली। मतलब अभी जो मैंने ऊपर बताया था, preposition means word before a noun. So all these words are noun obviously, and before them we use preposition, but it is not compulsory to use a preposition before a noun. And if any word is used before a noun is a preposition, it's not compulsory, because we use adjective or word of quality before the noun for this for different purpose. तो यहाँ पे ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती कि कोई वर्ड हमने नाउन के आगे लगा दिया वो प्रेपोजिशन हो गया। जैसे कि इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय के आगे इंटेलिजेंट लगा है, डज नॉट मीन कि इंटेलिजेंट प्रेपोजिशन है, क्योंकि इंटेलिजेंट बॉय की क्वालिटी बता रहा तो वो एडजेक्टिव या क्वालिटी टेलिंग वर्ड हो गया, इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन बेसिकली नाउन के आगे तो आ ही रहा है। बट द अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वी हैव टू नोटिस दैट कि आपका जो एक्शन है
वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है। उस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हमें प्रेपोजिशन चाहिए। तो रिलेशनशिप किसके साथ बना रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन। तो नाउन के आगे आ रहा है इसलिए उसको प्रेपोजिशन बोल दिया। अदरवाइज उनका जो रियल यूज है, जो इंपॉर्टेंट यूज है, बेसिकली वो यही है कि किस तरीके से प्रेपोजिशन को दो सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, वर्ब को ऑब्जेक्ट से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, सुमित प्लेज चेस एट 9 AM in the yard, okay, with friend or through tricks, okay, or at evening. So you see how these words now have helped play your action to make connection with these nouns, these object. अब ये सेंटेंस आपको मीनिंगफुल लगेंगे। देखो जरा, सुमित प्लेज चेस एट 9 AM इन द यार्ड विद फ्रेंड थ्रू ट्रिक्स एंड एट इवनिंग। तो हमको बस हमने व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट मेड अ सिंपल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ 3 क्वेश्चंस, हु, व्हाट एंड हु। हमने ये सेंटेंस बनाया एंड आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस सेंटेंस हमने क्या किया, हमने इन प्रेपोजिशन को लिया एंड वी हैव एक्सटेंडेड द सेंटेंस टू अ डिफरेंट लिमिट। ये काफी बड़ा सेंटेंस हो गया 3 वर्ड से। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेपोजिशन की अच्छी नॉलेज होनी पड़ेगी टू गेन द नॉलेज ऑफ प्रेपोजिशन थोरली, अलटुगेदरली एंड फेयरली। तो आप देखिएगा अभी पूरा सेंटेंस काफी लेंथी और काफी इंटरेस्टिंग, काफी डेकोरेटिव लग रहा है। तो इससे आपकी ना केवल इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्पीक बेटर, मतलब आपकी जो स्पीच क्वालिटी है इवन दैट हैज इनहेंस्ड। तो प्रेपोजिशन ना केवल आपको सेंटेंस को एक्सटेंड करने में हेल्प कर रहे हैं बट ऑल्सो दे आर हेल्पिंग यू टू एक्सटेंड योर to enhance your speech quality. You become a better speaker when you can use preposition correct. Okay, आपके पास preposition की अच्छी knowledge है, तो जैसे आप कहीं पर अटक गए, when you got struck while speaking, so using those preposition you can actually take the sentence further. Okay, तो preposition का use कितना important है ये बताने की जरूरत नहीं है, and they are so much important not only in your speech or writing purpose but also in your examination. There is no as such competitive academic exam where preposition are not asked. So actually rather I say the uses, the importance of preposition is unfathomable. So like इनका किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए स्पेशली जब हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो preposition holds actually a significant place. Okay, तो ये तो समझ में आ गया prepositions का काम क्या है ना, और किस तरीके से यूज कर रहा है, किस तरीके से ये एक्शन को अपने ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा है, ये तो समझ में आ गया। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पे एट ही क्यों लगाया और कुछ क्यों नहीं लगता, इन दी, विद, तो बेसिकली अपन जो प्रेपोजिशन लगाते हैं, द प्रेपोजिशन व्हिच वी आर यूजिंग बिफोर अ नाउन, ये डिपेंड करता है कि व्हाट रिलेशन वी वांट टू डिफाइन और वी वांट टू कनेक्ट, वी वांट टू एस्टैब्लिश विद आवर ऑब्जेक्ट। जैसे प्ले के साथ मुझे टाइम के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, एट लगाया, लेकिन टाइम के लिए तो और भी प्रेपोजिशन लगते हैं। अब यहाँ पे एट ही क्यों लगाया, तो इसका कारण है कि हम लोग, हमारे पास टाइम के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन है, लेकिन जो मैं यहाँ रिलेशन बताना चाहता हूँ, जो सेंस में देना चाहता हूँ, वो शार्प टाइम का है। मतलब एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पर वो खेलता है, एग्जैक्ट टाइम बताना चाहता हूँ, वो उसके लिए हम एट को ही यूज करते हैं। सिमिलरली इन द यार्ड लगाया, ये प्लेस के लिए है ना, सराउंडिंग के लिए मैंने इन द लगाया। सिमिलरली विद को लगाया टुगेदरनेस या कंपनी के लिए, यानी कि खेलता तो है लेकिन किसके साथ खेलता है, तो कंपनी का सेंस देने के लिए विद लगाया। इसी तरीके से ट्रिक्स, तो ट्रिक्स के साथ मैंने थ्रू लगाया क्योंकि ट्रिक्स उसका मीडियम है, खेलता तो वही है, क्लियर, और जो पॉन्स है वो मीडियम है, लेकिन वो उनमें ट्रिक्स यूज करता है, मीडियम है। जहां पर मीडियम का सेंस आ रहा है, मीन्स का सेंस आ रहा है, तरीके का सेंस आ रहा है कि किस तरीके से खेलता है, क्लियर। ऐसे ही इवनिंग में एट लगाया, फिर रात में खेलता है, यहाँ पे एम की तरह पीएम कर लेते हैं, रात में खेलता है, इवनिंग में खेलता है, 9 PM पर खेलता है ना, या 9 मैंने केवल लिख दिया 9, और 9 में भी कब, इवनिंग के टाइम पर। तो बेसिकली ये जो प्रेपोजिशन मैंने यूज करे हैं वो इसके साथ मुझे किस तरह का रिलेशनशिप देना है उसके अकॉर्डिंग करिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक सिंपल सी चीज हमारे दिमाग में आती है आफ्टर हैविंग सो मेनी एग्जांपल्स कि हमें प्रेपोजिशन को उसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो उन प्रेपोजिशन किस तरह का रिलेशनशिप किसके साथ देता है वो चीज हमें समझनी है।
जैसे जब एट किस 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 तरह के रिलेशनशिप को कन्वे करता है, और इन किस किस तरह के व्हाट ऑल द रिलेशनशिप आर बीइंग कन्वेड यूजिंग इन, विद का यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप के लिए, थ्रू का यूज कौन कौन से रिलेशनशिप के लिए, और एट का यूज किन के रिलेशनशिप के लिए करते हैं। आई एम श्योर आपको बेसिक जो मेरा पर्पस था आपको टू गिव द इंट्रोडक्शन द यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन समझ आया होगा। और अगर आप चाहते हो दैट आई शुड मेक एन एक्सटेंडेड वीडियो, अ लिटिल actually more informative actually video on preposition, I'll definitely upload the video on that. So for which you just go to the comment section and please mention the comment below about this particular thing. And if you want to send any particular feedback to us, or if you think that I am lacking something, so whatever you just feel about this video, you just mention everything to the comment section. I'll definitely read your comments, and if I find anything interesting and advisable, I'll definitely work on that. Okay, so I'm sure आपको समझ आया होगा। बाकी की बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना सब्सक्रिप्शन के बाद, तभी तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई अलग से कोई टॉपिक पढ़ना है, या आपको लगता है कि मेरे कुछ वीडियोस में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो फीडबैक एंड एडवाइस प्लीज, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रेशियस टाइम। थैंक यू।